Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes. Today I am starting here the English grammar of class 8th. I have already uploaded the two video of the English grammar, but that was not from your book, and today we are starting the English grammar from your book. Okay, so this is your book Irish English grammar, Irish grammar tunes. This is for the 8th class student, and here is your contents, the sentence, clauses, simple, compound and complex, etc. Okay, and this is the same lesson which I have already uploaded. First lesson we have sentences. Okay, so we have already discussed a sentence is a group of words that make complete sense. A sentence always has at least one finite verb. A sentence starts with a capital letter and ends with a full stop, a question marks, or an exclamation marks. Okay, so what is the definition of a sentence here? A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Okay, so sentence is a group of words that makes complete sense by itself. यानी sentence क्या होता है? Sentence एक group of word होता है, शब्दों का एक समूह होता है जो क्या बताता है, अपने आप क्या बताता है, उसका एक मीनिंग बताता है. ठीक है. अ सेंटेंस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. और जब खत्म होता है तो उसमें क्या होता है? कोई फुल स्टॉप होता है, कोई क्वेश्चन मार्क्स होता है. ओके, और या फिर क्या होता है? कोई एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है. ओके, so if you talk about how many kinds of sentences, okay, so previous video, that was the another book, and in that book that is described that there are the 5 kinds of sentences. Okay, they added the imperative imperative sentence here. Okay, so here is there are 4 kinds of sentence: assertive or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, okay, exclamatory sentence. And assertive or declarative sentence has two part: affirmative or positive and negative. Okay, so first here, what is assertive or declarative sentence? Okay, a sentence in the form of sentence is called assertive or declarative sentence. A sentence in the form of statement, ठीक है, जहां पर कोई स्टेटमेंट हो या फिर कोई भी बात क्या हो, सीधी कही गई हो, तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है. ओके, एन असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव में भी अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, इसमें क्या हो सकते हैं? या तो कोई सेंटेंस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, या फिर कैसा होगा? नेगेटिव होगा. ओके, सो पॉजिटिव मीन्स ही विल कम, ये पॉजिटिव सेंटेंस है. और ही विल नॉट कम, जहां पर नो, नॉट या फिर नो वन ऐसा कुछ लग रखा होगा, तो वो कैसे होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं. ओके, a sentence in the form of question is called a interrogative sentence. Okay, so we have discussed already in the previous video what is a interrogative sentence. Okay, where whenever we are asking question, whenever we have a question marks at the last of the sentence, that is called interrogative sentence. Okay, so what is here? A sentence in the form of command, request, etc. called an imperative sentence. Okay, सो अ सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस में क्या होगा? कोई कमांड होगी, रिक्वेस्ट कर रहा होगा, कोई ऑर्डर कर रहा होगा, तो वो कौन सा होगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. ओके, लाइक प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे. ओके, शट द डोर, कमांड कर रहा है. तो इस टाइप के जो सेंटेंस हो गए वो क्या होंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे. ओके, सो नेक्स्ट थिंग हियर, व्हाट इज वी हैव? अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेशन expressing feeling of joy, sorrow, surprise, etc. is called an exclamatory sentence. Okay, होता क्या है exclamatory sentence में? हमारी expressing feeling joy, मतलब हमारी जो क्या होती है, सडन फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स की एक्सप्रेशन के लिए, उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं. ओके, जैसे व्हाट अ हॉरिबल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, मतलब कितना सुंदर रोज है. इस टाइप्स के जो क्या होती है, हमारी सडन फीलिंग होती है, इन सब के लिए कौन से सेंटेंस का यूज़ करते हैं हम? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं. ओके, सो हियर इज द प्रैक्टिस सेट हियर, बट वी हैव टू डिस्कस हियर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट
I have uploaded the two video. First video is what is a sentence and their kinds. Second video, what is subject and predicate. Okay, but that was not from your book, so that's why I am uploading it again. So what is subject here? A subject consists two part, subject and predicate. ठीक है, कोई भी subject होता है उसके two part होते हैं, subject और क्या होता है, predicate. Okay, so a sentence, the subject of a sentence is the part which denote the person or things we are talking about. यानी जो sentence होगा, ये जो sentence में पूरी की पूरी बात होगी या फिर जो sentence जिसके बारे में होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. ठीक है, वो किसी का नाम हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है. ओके, एंड सेकेंड थिंग इज what is predicate? The predicate is the part of sentence which tell us more about the subject. The predicate will always include the verb. Okay, yani there is a one subject here. Okay, for example, one sentence here, and this sentence has one subject and one predicate. Okay, the thing which the sentence tells us, that is subject, and the word that tell us about the subject called predicate. यानी जो हमें किसके बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. लेकिन एक उसमें ध्यान रखने योग्य बात है, वो क्या, उसमें हमेशा क्या होता है, कोई ना कोई वर्ब होता है. ओके, हियर इज एग्जांपल गिवन हियर. he has gone to Mumbai. Okay, so he is subject or gone to Mumbai is predicate. Second, I am very happy, sorry, I am happy there. Okay, I am happy there, so I is subject and am happy there is predicate. They were dancing, so they is subject and were predicate here. Okay, so how to डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इट माइट नॉट बी डिफिकल्ट फॉर ए स्टूडेंट टू लोकेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन एन असर्टिव सेंटेंस, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस द ऑर्डर ऑफ वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल वर्ड और ऑर्डर ऑफ वर्ड इन स्टेटमेंट. सो इन केस ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सब्जेक्ट, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये हमेशा नहीं होता है कि सब्जेक्ट ऑलवेज कम फर्स्ट इन एवरी एंड ईच सेंटेंस. मतलब ये है कि सभी सेंटेंस में हमेशा क्या नहीं होता, सब्जेक्ट पहले नहीं आता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयर, आर यू रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आर यू रीडिंग अ न्यूज़ पेपर. ठीक है, तो इसमें आर सबसे पहले आ रखा है, तो आर तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये किसके बारे में बात हो रही है, यू के बारे में. ठीक है, तो यू इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी प्रेडिकेट हियर. ओके, सेकेंड थिंग इज इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज नॉट गिवन. ओके, जब इंपेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे होते तो वहाँ पे सब्जेक्ट क्या नहीं होता, दिया नहीं रहता, बट दैट इज अंडरस्टूड, वो हमें समझ में आ जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल समवन टेलिंग ओपन द डोर. ओके, व्हाट डज इट मीन, इट मीन यू ओपन द डोर. ठीक है, यू ओपन द डोर, तो यू इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. ओके, इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वर्ड. ओके, फॉर एग्जाम्पल हाउ हैप्पी शी वॉज. ओके, how happy she was. Okay, so I have already told you that the mostly student got confused. हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सब्जेक्ट क्या आएगा, हमेशा पहले ही आएगा. लेकिन इसमें देख लीजिए हाउ हैप्पी शी वॉज. ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, शी, कोई लड़की है उसकी बात हो रही है, तो हमेशा इसमें शी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा. ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर आ रखा है, यहाँ बीच में आ रखा है. ओके, सो हम इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, आस्किंग क्वेश्चन या फिर हु या व्हाट से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि हु वॉज हैप्पी. ठीक है, या फिर हु वॉज हैप्पी. ठीक है, तो कौन कौन खुश थी. ठीक है, हु वॉज हैप्पी, इसमें कौन है, आंसर इज शी. तो सी हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया. ओके, सो हियर फर्स्ट व्हाट इज सेंटेंस. ओके,
So sentence is a group of words that makes complete sense by itself. Here, how many kinds of sentence? So there are 4 kinds of sentence: assertive, interrogative, imperative, and exclamatory sentence here. Okay, and how many parts of the sentence here? Okay, so there are 2 parts: subject and predicate. Okay, so what you have to do from this chapter, there is two two exercises given here. A, read the following sentence and write their kinds. आपने क्या करना है, ये पढ़ना है और पढ़ने के बाद ये बताना है कि ये कौन सा है, असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, ठीक है, इंपेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है। ये आपने क्या करना है, यहाँ पर भरना है, मतलब आपने इस अपनी नोटबुक में से करना है। ओके, सेकंड थिंग इज हियर, where it is here. Okay, identify the subject and predicate in the following sentence and write in the box below. ठीक है, तो बॉक्स तो नीचे है, ठीक है, लेकिन आपने इसको भी क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर ए एंड बी। ओके, सो व्हाट you have to do, I will upload the whole PDF file in the description box of YouTube. So you have to download the whole PDF file and just revise once again. Okay, and do the exercise A and B in your notebook. Okay, and keep on watching the video. Thanks for watching the video. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates and notification. So thank you and goodbye and take care.